Hello everyone, welcoming you on today's online session for statistics part 2, chapter number 1, probability. In the previous lecture we have learned about some of the meanings of probability which will be used in this particular chapter. As a random experiment, sample space, union किसको बोलते हैं, intersection किसको बोलते हैं, difference event किसको बोलते हैं. Even we have learned about the coin part, the dice part, okay. And I hope so आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है. Now coming to exercise 1.1, question number 1. State the sample space of the following random experiment. We just got to state the sample space over here. Number 1, a balanced die is thrown 3 times. A balanced coin is thrown 3 times. Balanced coin toss किया है. तो sample space क्या होगा? हमने ऑलरेडी देखा था. Head head tail, head tail head, tail head head, tail head, tail head tail, head tail tail. Okay. Number 2, a balanced die with 6 sides and a balanced coin tossed together. एक डाइस मैंने यहाँ पे टॉस किया और साथ साथ में मैंने कॉइन भी टॉस किया. ओके, डाइस में नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6, कॉइन पे आते हैं हेड और टेल. तो सैंपल स्पेस विल बी कॉइन पे हेड, डाइस पे 1, कॉइन पे हेड, डाइस पे 2, कॉइन पे हेड, डाइस पे 3, कॉइन पे हेड, डाइस पे 4, कॉइन पे हेड, डाइस पे 5, कॉइन पे हेड, डाइस पे 6, कॉइन पर टेल, डाइस पे 1, कॉइन पर टेल, डाइस पर 1, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6. Total 12 outcomes will be there. Number 3, 2 persons are to be selected from the 5 persons A, B, C, D, E. Okay. हमें 2 persons select करने हैं 5 persons में से. So पहला A और B, then AC, AD, AE, then BC, BD, BE, then CD, CE और DE. पर्सन्स अलग अलग ही होने चाहिए विदाउट रिप्लेसमेंट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. Coming to question number 2. Write the sample space for the marks in integers scored by a student appearing for an examination of 100 marks and change the number of sample points in it. 100 marks के एग्जाम हो तो मार्क्स सैंपल स्पेस आपके क्या हो सकते हैं? तो सैंपल स्पेस कैन बी 0 मार्क्स का पॉसिबल है 100. तो सैंपल पॉइंट्स कितने हुए? 101. Question number 3. Write the sample space for randomly selecting one minister and one deputy minister from 4 persons. Okay. एक मिनिस्टर सिलेक्ट करना है मुझे और एक डेप्यूटी मिनिस्टर सिलेक्ट करना है 4 पर्सन्स में से. तो 4 पर्सन्स का नाम देता हूं मैं A, B, C, and D. ओके, उसमें मुझे सिलेक्ट करना है 4 पर्सन्स का नाम देता हूं मैं A, B, C, D. 2 जने सिलेक्ट करना है, 1 मिनिस्टर, 1 डेप्यूटी मिनिस्टर मुझे सिलेक्ट करना है. तो सैंपल स्पेस विल बी AB, AC, AD, then BA, BC, BD, then CA, CB, CD, DA, DB, DC. 12 outcomes. Question number 4. A balanced coin is thrown in a random experiment till the first head is obtained. The experiment is terminated with the 12 of the first head. Write the sample space of this experiment and say whether it is finite or infinite. ठीक है, जब हेड आ जाए उसको मुझे अल्टर कर देना.
जब तक आपका हेड नहीं आता है तब तक आप कॉइन को टॉस करते ही रहोगे, तो आपको इनफाइनाइट टाइम्स कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। नंबर 5, write the sample space for the experiment of randomly selecting 3 numbers from the list of first 5 natural numbers। 3 नंबर मुझे अभी सिलेक्ट करने हैं पहले 5 नेचुरल नंबर्स में से। ओके, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स डिनोट करता हूं 1 2 3 4 5। सैंपल स्पेस डिनोट करना है मुझे यहाँ पे। ओके, सो 1 2 3, just wait। One, two, three, 1 2 4, 1 2 5। ओके, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5। उसके बाद लेते हैं 1 3 4। ओके, then 1 3 5, then 1 4 5। ये 1 वाले सारे खत्म। then 2 3 4, 2 3 5, 2 4 5, ये 2 वाले खत्म। then 3 4 5। ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। so there are 10 sample points। question number 6, the sample space of a random experiment of selecting a number is u equal to 1 से लेके 20 तक। Okay, sample space is given, means sample space is given 1 से लेके 20 तक। set A, the selected number is an odd number। odd numbers कितने होंगे? कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 and 19। B, the selected number divisible by 3। 3 से divisible होंगे तो कौन से होंगे? 3 6 9 12 15 and 18। and C, the selected number divisible by 2 or 3। 2 और 3 के आपको दोनों लिखने हैं, 2 से भी होंगे और 3 से भी होंगे। so 2 3 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 and 20। okay, number 7, one family is selected from the families having 2 children। the sex male or female of the children from this family is noted। treat the sample space of the experiment and write the set showing the following events। okay, sample space 2 बच्चे हैं, दोनों बॉय बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल एंड गर्ल बॉय। ओके, क्या पूछा गया मुझे? पहला, वन चाइल्ड इज अ फीमेल, एक फीमेल यहाँ पे होनी चाहिए, तो ओके, बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय। सेकंड क्या पूछा गया मुझे? एटलीस्ट वन चाइल्ड इज फीमेल, कम से कम एक तो लड़की होनी ही चाहिए, तो बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, एटलीस्ट 1 मतलब मिनिमम 1, 2 भी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 2 6-faced balanced dice are thrown simultaneously। state the sample space of this random experiment and hence write the set showing the following events। ओके, अब आपने ऑलरेडी डाइस का लिख लिया था, कैसे हमें डाइस का मुझे सॉल्व करना है। ओके, तो आप डाइस का सैंपल स्पेस बना दोगे। आप डाइस का पहले सैंपल स्पेस, यू मेक द सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 then 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। सैंपल स्पेस के बना दिया आपने ड्रॉइंग की। now we got to give the answer for that। so number 1, the sum of the number on the
पेज नंबर 4 आपको सैंपल स्पेस ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। ओके, I write it down for you। पहला सेट ए का आंसर है 1 6, देन 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 and 6 1। सेट बी में पूछा है even the sum of the number of the dice is less than 4, 4 से कम होना चाहिए, तो 1 1, 1 2 और 2 1। सेट सी में पूछा गया सम ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस इज डिविजिबल बाय 3, दो नंबर को मैं प्लस करूंगा तो उसका आंसर जो भी आएगा वो 3 के टेबल माना चाहिए, से 1 2 1 + 2 3, तो वैसे तो उसके नंबर्स होंगे 1 2 1 5 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2 4 5 5 1 5 4 6 3 and 6 6। D sum of the number of the dice is more than 12, more than 12 तो पॉसिबल नहीं है, so it will be a null set। ओके, अब डाइस के पहले लिख लो सारे पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे लिख लेने के बाद सैंपल स्पेस आप लिख लेने के बाद उसको सॉल्व करके करोगे। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। Two numbers selected at random from the first five natural numbers. The sum of the selected numbers is at least 9। दो नंबर को प्लस करूंगा उसका आंसर मेरा पे 9 आना चाहिए, एटलीस्ट 6 आना चाहिए, denoted by set A। And the sum of the two selected numbers is even, is denoted by set B। दो नंबर को प्लस करूंगा उसका आंसर मेरा even नंबर आना चाहिए, वो सेट B होगा मेरा पे। ठीक है, write the set showing the following events and answer the following questions। ओके, the sample space लिख देते हैं। यू पूछा गया मुझे 1 से लेके 5 तक के नंबर दिए हैं, so the numbers found will be 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 and 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट ए में क्या बोला गया है, सम ऑफ द टू सेलेक्टेड नंबर्स इज एटलीस्ट 6, दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर 6 आना चाहिए, तो लेट मी सी 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 and 4 5 प्लस किया तो मेरा आंसर 6 या उसके ऊपर आना चाहिए। सेट बी में क्या बोला गया है, 1 2 3 4 5 6। सेट बी में क्या बोला गया मुझे यहाँ पे सम ऑफ द टू सेलेक्टेड नंबर्स इज इवन नंबर, दो नंबर को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर मतलब 1 और 3 4 आ गया, ओके 1 और 5 6 आ गया, 2 और 4 6 आ गया मेरा, और 3 and 5। ओके, नेक्स्ट ए यूनियन बी करना है आपको। ए यूनियन बी यू गॉट टू मेक ए और बी का यूनियन। ठीक है, तो कौन से नंबर्स आएंगे 1 3 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 and 4 5। सारे आपको एक बार लिख देने हैं। देन पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में नंबर्स कॉमन कौन से दोनों में कॉमन कौन से नंबर है 1 5 1 5 2 4 and 3 5। तो दोनों में नंबर जब कॉमन है वो। उसके बाद पूछा गया है ए डैश, जो नंबर ए में है उनको निकाल दो, बाकी सब आपको लिखना है ए डैश के अंदर। ओके, तो कौन से नंबर्स होंगे ए डैश के अंदर 1 2 1 3
से बी को निकाल देना है। ओके, आपको इंटरसेक्शन निकाल देना है इनमें से। तो क्या क्या निकल जाएगा, 1 5 निकल जाएगा, 2 4 निकल जाएगा और 3 5 निकल जाएगा। क्या बचा, 2 5 3 4 और 4 5। क्या बचा, 2 5 3 4 और 4 5। उसके बाद पूछा है मुझे A डैश इंटरसेक्शन B। A डैश इंटरसेक्शन B, इसका मतलब होता है B माइनस A। ओके, इसका मतलब होता है B माइनस A। B में से A को निकाल देना है। तो क्या क्या निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये क्या बचा, 1 3 बचा। ओके, कैन बी सेड दैट इवेंट्स A and B are mutually exclusive। A म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का बोल सकते, दोनों में हमारा इंटरसेक्शन नहीं हो, तो इंटरसेक्शन है, तो वी कैन नॉट से A and B are not mutually exclusive events. Then state the number of sample points of the random experiment. Sample points are 10. Sample points is equal to 10. Question number 10. 3 female employees and 2 male employees are working in an office. One employee is selected from the employees of this office for training. The event that the employee selected for the training is female is denoted by A. 3 female है, और female को नाम देख सकते हो A, B, C. And even if the employee male is selected is denoted by B. Male को नाम दे सकते हो X और Y. Find the set of the following events and answer the given equations. Okay, I'll help you out. लिखना आपको है, be ready with that. कैसे आपको लिखना है? First of all, you got to write the sample space. So write down the sample space A, B, C, D. A, B, C, X, Y is the sample space. पहले हमको पूछा गया है इवेंट A. इवेंट A मतलब फीमेल, लिख दो उसमें सेट A, B, C. Then इवेंट B मतलब के मेल, लिख दो उसमें X, Y. Then you got to find A union B. A और B में क्या आ जाएगा, दोनों को मर्ज करना है, A, B, C, X, Y. Then find करना है A intersection B, तो ये तो null set हो गया, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है. Then A dash intersection B मतलब B minus A, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ये भी हो गया B minus A, कुछ कटेगा ही नहीं, मतलब पूरा B आंसर X, Y. Then can it be said that A and B are mutually exclusive? Yes. There is not a common outcome, दोनों में कुछ भी common outcome यहाँ पे है नहीं. Yes, so we can say it is mutually exclusive events. Can it be said that events A and B are exhaustive events? A और B को अगर मैं प्लस कर लेता हूँ तो मुझे U मिल जाएगा, तो yes, we can say it is a exhaustive events. Okay. Question number 11. One card is randomly drawn from the pack of 52 cards. If drawing a spade card, let me ask you about the card first of all. There are 4 types of card. I am talking about 4 types, not the 4 colors. Spade, club, heart and diamond. Spade and club जो होते हैं, that is of black color. Heart and diamond is of red color. Okay. So first of all, if they are drawing a spade card, मतलब 13 13 13 13 कार्ड होता है. Okay, 13 13 13 13, total 52 cards आता है. Number card Ace मतलब एक का. It is also including the number cards. So in each of the types of cards there are 10 number cards and 3 face cards. A मतलब 1 मान लो, से लेके 10 तक, that's number card. Then J, Q and K, that is called the face card. तो 10 number card और 3 face card. मैं total pack के अंदर, okay, there are 52 pack के अंदर there are 40 number cards and 12 face cards. जोकर को मत गिनना. A drawing a spade card denoted by event A. अगर spade card तो मैं event A लेता हूँ. And drawing a card from H to 10 is denoted by B. ठीक है? 10 denoted by B. Then write the set showing the following events. पर sample space लिखना है. तो spade के लिए आपको क्या लिखना है? कैसे लिखोगे spade के लिए? इसे बता दूं मैं आपको. Question number 11.
स्पीड के लिए लिखना आपको SA, S2, S3, S4, SJ, SQ, SK। क्लब के लिए CA, A मतलब एक का एस, C2, C3, C4, CJ, CQ, CK। देन हार्ट के लिए HA, H2, H3, H4, HJ, HQ, HK। डायमंड के लिए DA, D2, D3, D4, DJ, DQ एंड D। ये बना दिया आपको मैंने यहाँ पे सैंपल स्पेस। ओके, देन सैंपल स्पेस ऑर्डर सेट E मतलब स्पीड के कार्ड, दैट इज स्पीड कार्ड SAS2 वाला। सेट B दैट इज नंबर कार्ड्स, SA से लेके S10 तक लिखोगे, CA से लेके C10, HA से लेके H10, DA से लेके D10 तक लिखोगे आप। उसके बाद A यूनियन B, अब आपको सॉल्व करना आता है कैसे करना है A यूनियन B। A इंटरसेक्शन B एंड B डैश, जो नंबर B में है उसको निकाल के सारे नंबर आपके B डैश में मिलेंगे आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। The events A1 and A2 of a random experiment are as follows. Okay, I'll solve it in the board. A1 is given x 0 से लेके 5, A1 1 2 3 4, 0 भी नहीं आएगा 5 भी नहीं आएगा। A2 -1 से लेके 3, मतलब ना -1 आएगा ना 3 आएगा। हमें फाइंड करना है A1 यूनियन A2, दैट इज 0 1 2 3 4, A1 इंटरसेक्शन A2, दोनों में कॉमन 1 2। सम नंबर 30, A1 में नंबर दिया है 2 लेस देन x, मतलब 2 आएगा, 2 3 4 5। A2 में नंबर दिया है आपको 3 लेस देन x लेस देन 9, 3 और 9 दोनों नहीं आएगा, 4 5 6 7 8। आपको फाइंड करना है A1 यूनियन A2, A1 इंटरसेक्शन A2। यू कैन फाइंड इट आउट। नंबर 14 में सैंपल स्पेस दिया 0 से लेके 10 तक, सैंपल स्पेस 0 1 2 3 से लेके 10 तक। ए में इवेंट्स दिया है 2 4 6, हमें पूछा गया ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए में लिया हुआ है मेरे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। एंड लास्ट सम 15, हमें सैंपल स्पेस दिया 0 1, ना 0 है ना 1 है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन इंटरवल। ओके, ना 0 है ना 1 है, सैंपल स्पेस ना 0 है ना 1, दैट्स कॉल्ड ओपन इंटरवल। सेट ए में नंबर दिया है, हाफ है और 1 नहीं है, हाफ है और 1 नहीं, ये डायरेक्ट का मतलब ये नंबर नहीं है, तो ए डैश में क्या होगा, 0 नहीं है और हाफ भी नहीं, 0 से लेके हाफ के अंदर। ओके, so with this I completed exercise 1.1 of chapter probability. Keep on practicing the sums again and again. जितनी बार हो सके उतनी बार अपने सॉल्व यहाँ पे करें। Okay, stay home, stay safe, keep learning. Thank you all once again. Have a nice day.